next in line is deduction in respect of profit and gains in terms of any undertaking or enterprise which is as far as established or incorporated as a part of SEZ, Special Economic Zone. So SEZ reflects Special Economic Zone, and the section corresponding to this is 80IA-B. 80IA is basically for infrastructure development, and IA-B will be for SEZ, undertakings in SEZ. So when exactly does this section could be attracted, means that it could be availed of or deduction herein. That is, this deduction is available only when the gross total income of an assessee, that is a developer of SEZ or an undertaking in an SEZ, they include their profits, by any profits or gains which are derived by such undertaking or an enterprise from specifically from business of developing an special economic zone, means a developer of SEZ, who any undertaking or enterprise which is engaged in any business of developing a special economic zone in any specified area after 1st April 2005 under the SEZ Act 2005, which has under which special economic zones are established. And some provisions of the section shall not apply if they are done after 1st April 2017. So it was basically a provisions until 2017. Then कितनी deduction allowed है? 100% of the income or the profit and gains which are derived by such business for development of SEZ, और 10 सालों तक consecutive assessment year, A-wise assessment year तक अवेल की जा सकती है, और टोटल 15 साल का टाइम लैग होता है। उसके बीच में किन्हीं 10 सालों में कॉन्जिक्यूटिवली मींस कंसिस्टेंटली लगातार 10 सालों में जो डिडक्शन है वो अवेल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज सेक्शन 80I-B, और वो किस कॉन्टेक्स्ट में है? वो भी प्रॉफिट एंड गेन्स के ही डिडक्शन की बात करता है इन केस ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स। सो अगर इफ यू आर एबल टू सम इट अप, फंडामेंटली सेक्शन 80 IA और IA-B और दिस IB एंड सो ऑन, IAC भी करेंगे। सो ये सब लोग ये सब सेक्शंस जो हैं बेसिकली प्रॉफिट एंड गेन्स की डिडक्शन के बारे में बात करते हैं, विच कुड बी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ और SEZ और न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स। सो इस केस में अगर हम बात करें, अगेन ग्रॉस टोटल इनकम अगर किसी एसएससी की इंक्लूड करती है जिसमें प्रॉफिट एंड गेन्स वाला सेगमेंट भी हो, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, बट फ्रॉम विच बिजनेसेस? दीज स्पेसिफाइड बिजनेसेस, दैट इज मिनरल ऑयल, दैट इज इट्स प्रोडक्शन और रिफाइनिंग ऑफ मिनरल ऑयल. Then it could be related to dairy products, it could be related to poultry products, it could be related to vegetables, fruits, meat or meat products, their packaging, preservation and processing. So basically this aspect, this second dimension, it basically covers the food processing segment, food processing industries. कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनकी पैकेजिंग हो रही है, प्रिजर्व किया जा रहा है उनको, या उनको प्रोसेस किया जा रहा है, सिमिलरली मीट प्रोडक्ट्स और पोल्ट्री और डेयरी प्रोडक्ट्स एंड सो ऑन. Then also it includes integrated or combined enhanced business of storage as well as transportation of food grains. So अगर उनके वेयर हाउसिंग बनाई गई है उनकी स्टोरेज के लिए या उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई वेंचर एस्टेब्लिश किया गया या उनकी प्रोसेसिंग या हैंडलिंग के लिए, तो वो भी इस सेक्शन के अंदर वो कंपनी जो है वो अपनी इनकम को माफ़ करवा सकती है, वो डिडक्शन क्लेम कर सकती है. Then it also includes any hospital which is located anywhere in India other than the specified excluded area कि इस एरिया में नहीं होना चाहिए. बेडिंग की रिक्वायरमेंट्स होती है 100 बेड्स एंड सो ऑन, उससे ज़्यादा होने चाहिए एंड डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स एस्टेब्लिश्ड. देन बेसिकली अगर हम बात करें तो 80I-B का ही एक सब कंपोनेंट है. ये जो चार हमने बिजनेसेस 3 डायमेंशन अभी बात की है, मिनरल ऑयल, डेयरी प्रोडक्ट्स, फूड ग्रेन्स एंड हॉस्पिटल्स. सो इन्हीं के अगर सब कंपोनेंट्स की बात करें तो 80I-B सब क्लॉज 9 जो डील करता है मिनरल ऑयल नॉर्थ ईस्ट रीजन में स्पेसिफिकली या किसी और पार्ट में इंडिया में अगर लगाई गई है कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई मिनरल ऑयल एक्सप्लोर कर रहे हैं या रिफाइनिंग हो रही है उसकी, फॉर एग्जांपल ONGC's प्लांट और एनी अदर such commercial venture either in northeast India, say Guwahati or Assam or anywhere else or Meghalaya or somewhere down the part any other segment of the country.
अलाउड कब की जाएगी? अगर वो जो अंडरटेकिंग वहाँ पर एस्टेब्लिश की गई है वो कुछ कंडीशन फुलफिल करे। वो कौन सी कंडीशन हैं? सबसे पहले कि वो नॉर्थ ईस्ट रीजन या में लोकेट हो, और किस दौरान लोकेट हो? 1 अप्रैल 1997 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में वहाँ पर एस्टेब्लिश की गई हो और फंक्शनिंग उसने शुरू कर दी गई हो। देन जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो भी उसने 1 अप्रैल 1997 से लेके इस बीच जो 31 मार्च 2017 एज आई हैव सेड सो उसके बीच में कर दी गई हो। सो बेसिकली एस्टेब्लिश भी इस ड्यूरेशन के बीच में हो और प्रोडक्शन या कमर्शियल एक्टिविटी भी स्टार्ट कर दी गई हो 1 अप्रैल 1997 से लेके 31 मार्च 2017 के बीच में। Then it should be engaged in business of refining mineral oil after 1 April as well, but not later than 31st March 2012 as far as other segments could be, other parts of India could be concerned। और कमर्शियल प्रोडक्शन भी वही ड्यूरेशन है 2009 से पहले हो चुकी हो। दिस इज़ बेसिकली द फोर्थ पॉइंट इज़ बेसिकली इन रिलेशन टू नेचुरल गैस स्पेसिफिक। जैसे केजी ब्लॉक की अगर आप लोगों ने आंध्रा में बात सुनी होगी, वो जो इशू बना था केजी ब्लॉक नेचुरल गैस एक्सप्लो की ओएनजीसी ने एंड सम प्राइवेट कंपनीज रिलायंस एंड सो ऑन। सो उन केस में अगर 2009 के बाद की गई है कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू उस लाइसेंस्ड ब्लॉक जो ब्लॉक उसको एलोकेट हुआ है वहाँ पर। सो कितनी डिडक्शन अलाउड है? 100% ऑफ एलिजिबल प्रॉफिट्स। और कितने सालों तक? 7 असेसमेंट ईयर्स तक। जिस साल जो है इनिशियल असेसमेंट ईयर, जो पहला असेसमेंट ईयर आया जब उसने कंपनी ने काम शुरू किया, जो फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर, उसका जो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर जो पहला बनता है उससे लेकर 7 असेसमेंट ईयर्स तक सारे के सारे प्रॉफिट्स को क्लेम कर सकती है कंपनी अगर ये कंडीशंस फुलफिल करती है और मिनरल ऑयल की एक्सप्लोरेशन का काम या उसकी रिफाइनिंग का काम है। देन सेकंड पार्ट हमने बात की फूड ग्रेन्स की ट्रांसपोर्टेशन की या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की, कोई प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, मीट प्रोडक्ट्स की, पोल्ट्री की, डेयरी प्रोडक्ट्स की या फूड ग्रेन्स को हैंडल करने की, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज की, सो ऑन। सो उसके लिए सब सेक्शन है 11A 80IB के अंदर ही। उस केस में वो बात करते हैं कि एसेंशियल कंडीशन क्या है कि जो उसने बिजनेस है वो स्टार्ट कर दिया गया हो इन सब चीज़ों को रिलेटेड बेसिकली 1 अप्रैल 2001 के बाद। और जो बिजनेस है अगर मीट प्रोडक्ट्स या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स का है वो 2009 के बाद, मतलब 1 अप्रैल 2009 ऑनवर्ड्स। और डिडक्शन कितनी अलाउड है? बेसिकली अगर खुद कंपनी एसएससी ओन कर रही कंपनीज एसएससी ओन कर रही है सो पहले 5 सालों तक डिडक्शन अलाउड है 100% और उसके अगले 5 सालों तक 30%। सो ओवरऑल 10 ईयर्स इज द टाइम लाइन दैट विल बी अलाउड। पहले 5 साल सारे प्रॉफिट्स और उसके बाद 30% ऑफ जो भी आपकी इनकम आएगी उसका 5 सालों तक आप क्लेम कर सकते हो एज ए डिडक्शन, आउटराइट डिडक्शन स्टैंड। देन हॉस्पिटल, थर्ड कंपोनेंट हमने बात की थी। हॉस्पिटल कहीं लोकेट किया गया है इंडिया में कहीं, एक्सेप्ट एक्सक्लूडेड एरिया जो नोटिफाइड एरिया की वहाँ नहीं होना चाहिए, उसके लिए सब क्लॉज 11C बात करता है इसी सेक्शन का आईबी का। उसके लिए क्या कंडीशन है हॉस्पिटल की अगर बात कर रही हैं तो वो कंस्ट्रक्ट कर दिया गया हो और उसकी फंक्शनिंग स्टार्ट हो गई हो 1 अप्रैल 2008 से लेकर 31 मार्च 2013 के बीच में, इस ड्यूरेशन के बीच में। और कम से कम 100 बेड्स हों पेशेंट्स के लिए जैसे मैंने इनिशियली बताया। और जो कंस्ट्रक्शन है दैट शुड बी इन लॉज विद रेगुलेशंस ऑफ द लोकल अथॉरिटी, मतलब कोई अनअप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए या कोई लिटिगेशन केस नहीं होना चाहिए। देन असेसी ऑल्सो इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिपोर्ट ऑफ ऑडिट इन सच फॉर्म्स एज फार एज विच विल बी सर्टिफाइड बाय अ CA along with his return of income for claiming such deduction under this section for a hospital which has been made out। So उस रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट में वो जो CA सर्टिफाई करेगा उसमें होगा क्या, उसमें ये बताया जाएगा कि जो ये डिडक्शन क्लेम करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से इन्होंने अराइव आउट किया और बिल्कुल सही है। सो एक काउंटर चेक है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बायलॉज के अंदर बनी है, सब कुछ मतलब 100 बेड्स हैं और जो डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। कितनी डिडक्शन अलाउड है? 100% टोटल प्रॉफिट्स का जितना भी है 5 सालों तक कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स तक। शुरुआती असेसमेंट ईयर जब उसने हॉस्पिटल ने काम करना शुरू कर दिया तब से लेकर 5 सालों तक 100% प्रॉफिट्स आर अलाउड।
देन अगर हम बात करें हमारे पास एक और सेगमेंट है बेसिकली 80 IAC। सो आई ए पहले हमने बात की, फिर IB की बात की, अब IAC। यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट एंड गेन्स की ही बात हो रही है, बट स्टार्टअप कंपनीज के लिए, जो नई स्टार्टअप कंपनीज एस्टेब्लिश की गई हों स्पेसिफाइड बिजनेसेस में, स्पेसिफाइड टारगेट इंडस्ट्रीज या एरियाज में, सेक्टर्स में, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टार्टअप कंपनीज, नई कंपनीज बूस्टअप किए गई हैं, उनके प्रॉफिट्स और को या उनकी इनकम को माफ़ कैसे किया जाए या डिडक्ट कैसे, अलाउ कैसे किया जाए। सो 100% डिडक्शन अलाउड है 3 सालों तक, टोटल 10 सालों के अंदर अंदर, जिस साल उसने काम करना शुरू किया है या इनकॉर्पोरेट हुई है। बेसिकली इनकॉर्पोरेशन के अंदर ही बेसिकली 3 सालों तक, लगातार 3 साल तक जो कंसेक्यूटिव है 10 सालों के पीरियड में, वो डिडक्शन क्लेम कर सकती है। और देन अगर हम बात करें मार्केटिंग, परचेज या सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमने बात की थी पीए सेक्शन डील करता है 80 पीए कि अगर कोई फार्म प्रोड्यूसर कंपनी या कोऑपरेटिव बना है, अगर कोई कंपनी एस्टेब्लिश की गई है फार्मर्स के द्वारा इकट्ठे हो गए, सो वो जो उसके मेंबर्स हैं, उसके जो फार्मर्स मेंबर हैं, उनकी जो प्रोड्यूस है उसकी मार्केटिंग कर रही है या उसको परचेज करके आगे बेच रही है या उसकी प्रोसेसिंग कर रही है, सो उस केस में क्या प्रोविजन है, 100% प्रॉफिट्स अलाउड होगा उस कंपनी के लिए भी, उस एंटिटी के लिए भी। कितनी देर के लिए, 5 सालों तक अलाउड होगा। 2018-19 से ये स्टार्ट किया गया है सब। हालांकि एक वाइटल कंडीशन ये है कि जो टोटल टर्नओवर है उस कंपनी की, ऐसी जो इस काम में लगी हुई हैं, वो 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 100 करोड़ से कम का जो एंटिटी ऐसे काम कर रही है, जो ट्रांजैक्शन कर रही है अपने फार्मर्स की, अपने मेंबर्स की, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट कर रही है, चाहे यहाँ परचेज कर रही है, मार्केटिंग कर रही है, प्रोसेसिंग कर रही है उसकी, फॉर एग्जांपल शेलर्स एंड सो ऑन, खुद ही शेलर एस्टेब्लिश कर लिए अगर फार्मर्स ने मिलके एंड सो ऑन। सो उस केस में 5 सालों तक सारे का सारे प्रॉफिट्स जो उस एंटिटी को होंगे वो माफ़ हैं, अलाउड है एज अ टू बी क्लेम्ड एज डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन 2018-19 से, बट बशर्ते कि जो ओवरऑल टर्नओवर है उस कंपनी की वो 100 करोड़ से कम की हो। सो द डिडक्शंस दैट वी हैव टॉक्ड स्पेसिफिकली रिलेटेड टू IC की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिकली जो हिली एरियाज़ हैं हमारे, सिक्किम हो गया, उत्तरांचल जिसको अब उत्तराखंड कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनके केस में अगर कोई एंटिटी एस्टेब्लिश वहाँ पर की जाती है एंटरप्राइज, तो उनके केसेस में भी डिडक्शन अलाउड है। जैसे कि आपको पता होगा फार्मास्यूटिकल की कंपनीज, बहुत सी कंपनीज हैं जिनकी जो प्लांट्स हैं, जिनकी जो यूनिट्स हैं वो सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है, एंड सच नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स कंसर्न। सो वो क्यों है, क्योंकि डिडक्शन भी यहाँ पर मिल रही है और भी टैक्स इंसेंटिव मिलते हैं। सो ATC IC के अंदर डिडक्शन क्या है, कंडीशंस हैं कुछ की डिडक्शन क्लेम करनी है अगर इन कंपनीज को इस सेगमेंट के अंदर, इस सेक्शन के अंदर, कि वो जो कंपनी बनी है वो कोई स्प्लिट आउट करके पुराने बिजनेस को ही या उसकी रिकंस्ट्रक्शन करके, रीऑर्गेनाइजेशन करके ही ना बनी गई हो, वो बेसिकली एक फ्रेश एंटिटी क्रिएट की गई हो। मतलब जो ऑलरेडी इंडस्ट्री मतलब कोई कंपनी एग्जिस्टेंस में है उसी को स्प्लिट कर दिया, उसकी एक डिवीजन जी हमने सिक्किम में या हिमाचल प्रदेश में खड़ी कर दी और मेन कंपनी कहीं और काम कर रही है, सो दैट इज शैल नॉट बी स्पेसिफिकली अलाउड। या उसका ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चर कर दिया, दैट इज़ नॉट स्पेसिफिकली अलाउड इन दिस सेक्शन। देन इट शैल नॉट बी फॉर्म्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ ओल्ड प्लांट एंड मशीन्स ओनली। हालांकि अगर हम बात करें कि स्पेसिफाइड जो स्टेट्स हैं सिर्फ वहीं पे एस्टेब्लिश हो, और कई केसेस में कुछ प्लांट एंड मशीनरी पिछले एग्जिस्टिंग बिजनेस का भी यहाँ पर नए बिजनेस में इसमें यूज़ करना अलाउ किया जाता है। देन किस काम में लगी हों, वो मैन्युफैक्चर कर रहे हो या प्रोडक्शन कर रहे हो स्पेसिफाइड गुड, फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल या जो भी नोटिफाइड की गए हैं इस सेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग कि वो इंडस्ट्रीज़ या एंटिटीज़ या अंडरटेकिंग्स ही एलिजिबल हैं जो इन पहाड़ी इलाकों में लगेंगी। फॉर एग्जांपल से इट कुड बी फूड प्रोसेसिंग की, फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश के लिए एप्पल बहुत ज़्यादा बढ़िया क्रॉप वहाँ पर होती है, सो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई एक्सपोर्ट यूनिट या फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा दी, या फार्मा की कंपनीज एंड सो ऑन, जो भी स्पेसिफाइड गुड्स नोटिफाई की जाएंगी इस सेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग, सिर्फ उन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन हो रही हो। देन उन्होंने प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग जो है विद इन टाइम जो स्टिपुलेट किया जाएगा नोटिफिकेशन के द्वारा, उसके अंदर ही उसको कर लिया गया हो। एंड जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो ऑडिटिंग करवानी ज़रूरी है और ऑडिट रिपोर्ट भी रिटर्न के साथ सबमिट होगी।
आपकी जो भी डिडक्शन क्लेम की जा रही है वो ठीक तरीके से क्लेम की जा रही है। और रिटर्न ऑफ इनकम की या रिटर्न फाइलिंग की बात करें तो असेसमेंट ईयर 2006-07 के बाद जो है वो ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करनी है। अगर ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं की गई तो जो लेट रिटर्न फाइलिंग है तो उस केस में आप डिडक्शन क्लेम इस सेक्शन की नहीं कर सकते। जैसे हमने लॉसेस कैरी फॉरवर्डिंग के केस में बात किया था कि हाउस प्रॉपर्टी हो जाए तो उसका नुकसान चाहे लेट रिटर्न फाइल करो तब भी क्लेम कर सकते हो। बिजनेस हो में नुकसान है या कैपिटल गेंस में नुकसान है तो अगर रिटर्न लेट फाइल करी तो वो नुकसान फिर वो कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं किए जाते। सिमिलरली इस सेक्शन की भी डिडक्शन आपको टोटल इनकम आप वेव ऑफ नहीं करवा सकते अपनी इनकम अगर आपने रिटर्न लेट फाइल की, अगर ऑन ड्यू डेट रिटर्न फाइल नहीं की, और जो डिडक्शन है वो रिटर्न में क्लेम करनी है। देन अगर हम बात करें हाँ स्पेसिफिक होटल या कन्वेंशन सेंटर एनसीआर रीजन में, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली, नोएडा या गुड़गांव जो एरिया आ जाता है, जो एरिया उसमें कवर है, अगर वहाँ पर कोई बनाया गया है बिजनेस, उसका खोला गया है स्पेसिफाइड, इसकी भी रिक्वायरमेंट्स है कि मिनिमम 3 स्टार से कम नहीं होना चाहिए, वट एवर द केस में भी। सो उस केस में 80ID सेक्शन एप्लीकेबल होता है अगर डिडक्शन क्लेम करनी है। होटल हमने बनाया है, कोई होटल का बिजनेस है या कन्वेंशन सेंटर है एनसीआर रीजन में। कंडीशंस क्या है? कंडीशंस है बेसिकली कि वो होटल का बिजनेस हो उसका स्पेसिफाइड एरिया में, या कन्वेंशन सेंटर खुद बनाया हो, ऑपरेट कर रहे हों या ओन कर रहे हों। देन ये जो बिजनेस है ये स्प्लिट आउट करके किसी पुराने बिजनेस को ही या उसको रीऑर्गेनाइज रिकंस्ट्रक्ट करके ना हो, एक बिल्कुल फ्रेश एंटिटी हो, एंटरप्राइज या अंडरटेकिंग हो। देन ट्रांसफ़र जो पिछले बिजनेस का है उसका प्लांट मशीनरी बेसिकली अलाउड नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में 30% तक अलाउड होता है। और ऑडिट रिपोर्ट ज़रूर लगेगी साथ में रिटर्न ऑफ इनकम की कि हाँ डिडक्शन सही तरीके से क्लेम की गई है, ये एंटिटी एलिजिबल है इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन अपनी सारी क्लेम करने के लिए। रिटर्न फाइल करनी है बिफोर ड्यू डेट, जैसे कि हमें पता है जो भी ड्यू डेट उसकी हो, अगर ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं तो उस केस में जैसे सितंबर 30 होता था या अब अक्टूबर 31 है। देन डिडक्शन अदरवाइज नहीं अवेलेबल होगी अगर रिटर्न उसने फाइल नहीं की। सो रिटर्न फाइल करनी है, उसके अंदर ही डिडक्शन क्लेम करनी है, स्केड्यूल के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन करके बताना है कि ये डिडक्शन हम क्लेम कर रहे हैं और ये हमारी साथ में ऑडिट रिपोर्ट अनेक्स्ड है या ये प्रूफ है कि हमने सही तरीके से डिडक्शन क्लेम की है। कितने डिडक्शन अलाउड है? सारे के सारे प्रॉफिट्स एंड गेन्स फॉर 5 ईयर्स बिगनिंग फ्रॉम इनिशियल असेसमेंट ईयर, सो 5 सालों तक जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो सारे का सारा आप एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अंडर दिस सेक्शन, अगर होटल या कन्वेंशन सेंटर है एनसीआर रीजन में स्पेसिफिकली। देन इनिशियल असेसमेंट ईयर वही माना जाएगा जो प्रीवियस रेलिवेंट ईयर है जहाँ पर उसने कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए, होटल ने या कन्वेंशन सेंटर ने। देन आई एज द नेम इम्प्लाइज, ई से या कॉनोटेशन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। सो अगर कोई एंटिटी स्पेसिफिकली बनी है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एस्टेब्लिश की गई हैं तो उनके केस में डिडक्शन अलाउड है अंडर दिस सेक्शन। वो क्या है, किसको अलाउड है? चाहे जिसकी बेसिकली जो अंडरटेकिंग है तो वो बिजनेस या उस कॉन्टेक्स्ट में ही होनी चाहिए। सो जिस असेसी की इनकम में प्रॉफिट एंड गेन्स मेंशन्ड हैं वहाँ से इनकम हो रही है उसको फ्रॉम सच अंडरटेकिंग, उसको ये अलाउड है इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम करना। और कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं डिडक्शन क्लेम करने के लिए। 1 अप्रैल 2007 से लेकर 1 अप्रैल 2017 के बीच में वहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में उस अंडरटेकिंग को एस्टेब्लिश किया गया हो और काम शुरू हो चुका हो। किन किन बिजनेसेस के लिए है, किन किन एंटिटीज़ के लिए है? कोई भी ऐसी मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करना कोई आर्टिकल या थिंग विच हैज़ बिन नोटिफाइड, या पुरानी यूनिट को एक्सपेंड किया है या कोई मैन्युफैक्चर की है, या टू कैरी आउट एनी एलिजिबल बिजनेस फॉर द सेम। एंड बेसिकली स्प्लिटिंग पुराने बिजनेस की एग्जैक्टली अलाउड नहीं है, या रिकंस्ट्रक्शन जैसे ही बाकी सेक्शंस में भी अलाउड था, बट कुछ केसेस में ये है कि जैसे जो नॉर्मल प्रोविजन होती हैं प्लांट एंड मशीनरी पिछले बिजनेस की आप यूज़ कर सकते हो अप टू अ सर्टन एक्सटेंट। देन सेम वही केस कि 20% टोटल प्लांट एंड मशीनरी जो है नए बिजनेस में वो पुरानी बिजनेस की यूज़ की जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो नए बिजनेस में जितनी प्लांट एंड मशीनरी यूज़ कर सकते हो करनी है, उसका 20% पुराने बिजनेस से सोर्स कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। और ओवरऑल कितनी डिडक्शन? 100% अगेन फॉर 10 ईयर्स स्टार्टिंग विद इनिशियल असेसमेंट ईयर। देन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट
को हैंडल करने में अगर कोई एंटरप्राइज एस्टेब्लिश की गई हैं बेसिकली प्रॉफिट एंड गेन्स उन अंडरटेकिंग्स की, उसके लिए 80JJA क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? प्रॉफिट एंड गेन्स हो, मतलब प्रॉफिट एंड गेन से इनकम हो, तभी ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा। और वो किस कॉन्टेक्स्ट में? प्रोसेसिंग या ट्रीटिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उस कॉन्टेक्स्ट में अंडरटेकिंग या एंटरप्राइज लगी हुई हो। रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो फॉर जनरेटिंग बायो फर्टिलाइजर्स या प्रोड्यूसिंग बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड्स और एनी बायोलॉजिकल एजेंट्स, या बायोगैस प्रोड्यूस हो रही है, कोई पैलेट्स फॉर फ्यूल और ऑर्गेनिक मैन्योर, उस कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है प्रोसेसिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और कितने डिडक्शन अलाउड है? सारे के सारे प्रॉफिट्स 5 सालों तक शुरुआती असेसमेंट ईयर से स्टार्ट होकर, जब वो बिजनेस कमर्शियली स्टार्ट ऑपरेशन उसने कर दी हैं। Then another very important segment or section is 80JJAA। ये किसका डील करता है? ये बेसिकली डील करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू वर्कर्स और न्यू एम्प्लॉयज़, मींस न्यू वर्कर्स को हायर अगर किया है, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करने के लिए सेक्शन इनकॉर्पोरेट किया गया है। पर्पज़ यही है कि कंपनीज नए एम्प्लॉयज़ को हायर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स दें, और जो भी नए लोगों को जॉब्स दे रही हैं उनको इंसेंटिव क्या मिलेगा? कंपनी क्यों नए लोगों को हायर करेगी, खर्चा क्यों बढ़ाएगी? उनको यहाँ पर डिडक्शन क्लेम वो कर सकती हैं, अपनी इनकम उतनी कम क्लेम कर सकती हैं अपनी इनकम में से, अप टू एक्सटेंड ऑफ 30%, कि जो जितने नए एम्प्लॉयज़ के कॉन्टेक्स्ट में एडिशनल उनका मतलब जो एक्सपेंडिचर या जो भी ओवर कॉस्ट बढ़ रही है। असेंशियल कंडीशंस क्या है? जो बिजनेस जो है, इट कुड बी बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ असेंशियल बिजनेस एंड बट बेसिकली इट शैल नॉट बी अप्लाई फॉर सच रीऑर्गेनाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जैक्टली एन ओल्ड बिजनेस। और अगर बिजनेस एक्वायर किया गया है, एसएससी ने ट्रांसफर फ्रॉम सम अदर पर्सन, मींस बाइंग अ बिजनेस और यूनिट एंड अंडरटेकिंग फ्रॉम सम अदर पर्सन, देन ऑल्सो इट इज कुड बी अलाउड। और रिपोर्ट फर्निश करनी पड़ेगी अलॉन्ग साइड योर रिटर्न ऑफ इनकम CA से, कि सही तरीके से कंप्यूट की गई है, जो भी डिडक्शंस हैं सारा कुछ फॉलो किया गया है। डिडक्शन कितनी अलाउड है? एज आई सेड 30% जो है वो एडिशनल एम्प्लॉयज़ जो हायर किए हैं उसकी कॉस्ट जो है उसका 30% सीधा यहाँ पर क्लेम कर सकते हो, विच कुड बी अलाउड फॉर 3 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स। शुरुआती असेसमेंट ईयर से जिस साल काम शुरू किया या उनको एम्प्लॉयमेंट रादर दी है जिस साल नए एम्प्लॉयज़ को, वहाँ से 3 सालों तक हर साल अपने प्रॉफिट्स का जो यहाँ जो गेन्स हैं बिजनेस के, उसका जो नए एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट है, एडिशनल कॉस्ट जो पड़ी है न्यू एम्प्लॉय कॉस्ट, उसका 30% आउटराइटली इस सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं। सो 30% जो है वो गवर्नमेंट बियर करेगी इनडायरेक्टली बाय गिविंग एग्जम्पशन अंडर दिस सेक्शन। देन 80LA, अगर कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जैसे हमने बात की थी गिफ्ट सिटी बनी है गुजरात में या इस्टेब्लिश की गई, जैसे हांगकांग वगैरह में इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर्स हैं, फाइनेंशियल सेंटर्स हैं। सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अगर कोई इस्टेब्लिश किया गया या ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स है, उससे इनकम आ रही है, सेक्शन 80LA। कंडीशंस क्या हैं? कि रिपोर्ट फर्निश करनी पड़ेगी CA की अंडर दिस स्पेसिफिक फॉर्म्स 10 CCF की डिडक्शन सही तरीके से क्लेम की है, और परमिशन जो ऑब्टेन की गई थी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर गवर्नमेंट RBI के थ्रू, और ऑफशोर बैंकिंग यूनिट अगर एस्टेब्लिश की गई है, सो उस केस में वो साथ में अनेक्स करनी पड़ेगी कि हाँ परमिशन थी इसको एस्टेब्लिश करने की। और डिडक्शन किसको अलाउड होगी? डिडक्शन उन एसेसीज को अलाउड होगी बेसिकली कंपनीज फॉर्म में ही, बट कौन कौन सी कंपनीज? कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को नहीं अलाउ होगी, कोई स्केड्यूल्ड बैंक है जैसे, या कोई बैंक और इनकॉर्पोरेट किया गया है विद इन इंडिया एज पर लॉ और आउटसाइड इंडिया एज पर सम फॉरेन लॉज, या जिसका कोई ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है उसका एक यूनिट या ब्रांच एस्टेब्लिश की गई है। और जो डिडक्शन है वो किन इनकम्स में से हो सकती है? वो हो सकती है कि अगर उसकी स्पेसिफिक इनकम ऑफशोर बैंकिंग यूनिट की SEZ के अंदर एस्टेब्लिश है तो वहाँ से हो सकती है। कोई और बिजनेस है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर वो बिजनेस कर रही है, स्पेसिफिकली बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ही, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और लैंडिंग और फैसिलिटेटिंग ट्रांसफर्स एंड सो ऑन। देन कोई और इंटरनेशनल सर्विस सेंटर हो जहाँ से उसने अप्रूवल ली हुई है। सो बेसिकली डिडक्शन कितनी अलाउड है? बेसिकली ये फाइनेंशियल सेगमेंट के लिए सेक्शन है कि कोई ऑफशोर बैंकिंग यूनिट बना ली, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर जो सेंटर है वो क्रिएट किया गया इधर इन एन SEZ यूनिट और अदरवाइज इन नोटिफाइड एरिया।
सो सिर्फ उन्हीं को एक्सक्लूसिवली बैंकिंग सेगमेंट को या फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर को ही वो प्लेयर को या अंडरटेकिंग को ही अलाउड है इसके अंदर डिडक्शन। कितनी? सारे की सारी इनकम की 5 सालों तक, जिस साल वो उसने परमिशन ले ली थी या काम ऑपरेशन शुरू कर दिया था, और 50% उसके बाद आने वाले 5 सालों में। फाइनली ओके, so this was all about the different deductions under section 80. So in addition to this, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, आपने जब बिजनेस और प्रोफेशन वाला सेगमेंट भी किया था उसके अंदर भी डिडक्शन है कंपनीज को या बिजनेसेस अगर एस्टेब्लिश हैं तो वहाँ पर भी जो 33, 30, 35, 33A भी, 35D जो सारे सेक्शंस के हैं वो भी आएंगे।